Please start. Advent of European company, India maintained direct trade and commerce with West since ancient period. There was demand for India species pepper, cardamom, sir, Cinnamon. cinnamon, silk, etc. in West. After Muhammad Qayyum Qasim. Qasim, after Muhammad Qasim invention Invasion. in seven Invasion. invasion गलत मत पढ़ो, नहीं आया तो पूछिए, invasion गलत मत पढ़िए। पढ़िए। अटैक करना है। invasion. इन्वेजन माने अटैक करना। Okay. 712 AD, there was a change. Arabs grabbed India's external trade in species. They Spices. conduct other Spices operation spices. माने They मसाले। conduct their okay. They conduct their operations through Through. through Through. through सबसे पहले क्या था? सबसे पहला रास्ता कैसा आते थे route. लोग? WCI wide the पर्शियन गल्फ। sir, पर्शियन गल्फ। Persian Gulf, Persian Gulf, land of Iran, Mediterranean, sir, वेनिस। वेनिस। Venice, वेनिस माने Venice, पर्शिया। पर्शिया का आज का ईरान। टुडेस ईरान इज नोन एज पर्शिया। ठीक है। Persia. पर्शियन गल्फ, लैंड ऑफ ईरान। मेडिटेरियन सी है Oh, उसके अतराफ जो रहता, इसका नाम है वेनिस। ये पूरे okay. जगहों का नाम है। ये पहला रास्ता था। पहला कहां से आते थे? पर्शियन गल्फ, Iran, फिर ईरान और Iran, मेडिटेरियन, देन वेनिस। उसके बाद WCI via Red Sea, Alexander, Mediterranean, Winch, रेड सी, अलेक्जेंड्रिया, वेनिस। वेनिस नाम है। Venice, वेन इस, Venice, वेनिस। Venice. उसके बाद So northwestern region of India that is through sir, बाइजेंटीन एम्पायर। Byzantine Empire with its capital at sir, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल ये क्या है मैं समझाता हूँ, मैप के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट पढ़िए पूरा। In 1453 AD, the Ottoman Turks under Muhammad II invade, invent, sir, invaded, invaded, invaded sir, invaded, Byzantine Empire. sir, Byzantine Empire and occupies its capital city, uh, Consta, sir, Constantinople. Constantinople closed the land thread routes by Constantinople. 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 ये वाया VIA वाया। Via. They also exercise authority over maritime merchandise route also. मैरीटाइम माने पानी के थ्रू वाटर। मर्केंटाइल माने okay. पानी के जो पानी Water से जो आते वाटर, okay. ओशन में जो ट्रैवल करके आते हैं उसको बोलते हैं मैरीटाइम। मर्केंटाइल माने ट्रेड। मर्केंटाइल माने ट्रेड। उसके बाद
इसका क्या करें? प्लीज रीड. This act of Ottoman Turks under Muhammad II adversely एडवर्सली. affected the एडवर्सली adversely माने affect, नेगेटिवली. okay, affected the European trade with India. Moreover, the sellers of Sir वेनिस. Ven- वेनिस. Venice, Venice, Mil, Mil, Milan. Milan in Italy Monopolized. monopolized the sea trade with Asia मोनो and did माने not मोनो eastern. माने एक. पोलाइज माने बिजनेस. Okay. बिजनेस सिर्फ एक ही रहना बस. मोनो माने एक. पोलाइज माने बिजनेस. सिर्फ एक ही बिजनेस. Business. Okay. Did not let Western Europeans like Sir पोर्चुगल. Portugal and Spain to have any share in this trade. All these developments leads the Western European state, Portugal and Spain, Spain to search for new and safer sea routes to India and more south after Spicy Island, Indonesia. They known as East Indians. Other ईस्ट factor इंडीज. ईस्ट contribute the इंडीज. East Indies. Other factors contribute to geographical uh, de- sir, डिस्कवरीज. discoveries where वर वर वर. were ये were क्या है? दिस इज where वेयर. ये क्या है? were वर. were नेक्स्ट. the emergency of nation states, sir, द इमरजेंस. reassess स्टार्ट होना. इमरजेंस Emergence. माने स्टार्ट होना. Start होना. इमरजेंस ऑफ नेशन ट्रेड. State. नेशन स्टेट. नेशन स्टेट किसको बोलते हैं? nation state. नेशन स्टेट किसको बोलते हैं? सिटीजनशिप में समझाया था. व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट किसको बोलते हैं? कंट्री है, उसमें पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन को सेव करने के लिए उसके भी एक बाउंड्री है. यहाँ पे बाउंड्री. देन वो बाउंड्री को सेव करने के लिए क्या है? आर्मी है. उसको बोलते नेशन स्टेट. व्हाट इज नेशन स्टेट? देयर इज अ बाउंड्री. बाउंड्री में पॉपुलेशन और बाउंड्री को सेव करने के लिए Army. आर्मी है, फोर्स है. इज नोन एज नेशन स्टेट. नेक्स्ट. Okay. Sir, वो renaissances रेनेसां. क्या sir? Renaissance and Reformation, agriculture and industrial revolutions, new economic, sir, new economic डॉक्ट्रिन. doctrine and mercanti- मर्केंटलिज्म. mercantilism, अगर competition आपका between आपका nations. फायदा तो दूसरे का नुकसान. या तो पूरा फायदा होना आपको. या अगर पूरा आपको नुकसान. फायदा तो दूसरे को नुकसान. नुकसान. ठीक है. दिस नोन एज मर्केंटलिज्म. माने एक ही आदमी रहना बस. एक का फायदा, एक का नुकसान. एक का फायदा, एक का नुकसान. उसके बाद Competition between nation state for breaking the mercantile monopoly of the merchants of वेनिस. Venice and जेनेवा. Venice and Geneva over sea borne trade.
and a great advance in navy. Advance in Sir, navigational technologies like compass, gunpowder, shipbuilding technology gave compass, gunpowder, strong shipbuilding technology. उसके बाद yes gave strong im- inputs for geographical discoveries leading to the finding of new world and new sea routes. new sea routes. Impetus, impetus माने push, माने force. ठीक है, समझ आ रहा? So you have just read it now. Yes. तो ये क्या है, पूरा आपको इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप ग्रुप टू का जब एग्जाम दे रहे हैं तो ये ज्यादातर पूछा होना है एग्जाम्स में. ठीक है, तो लेट अस गो वन बाय वन. Let us go one by one. Now, when I was explaining you, European powers है. European powers कितने थे? How many European powers were there? 3. French. उसके बाद Dutch. उसके बाद Portuguese. Dutch माने पोर्चुगीज को ही बोलते. अच्छा, इंग्लिश पीपल. उसके बाद में इंग्लिश. ठीक है, इन लोगों से पहले भी, ये तो बहुत बाद में है. इन लोगों से पहले कौन थे? इन लोगों से पहले टर्क्स. टर्क्स कहां से? टर्की है. उन लोगों से पहले कौन राज करते थे पूरा वर्ल्ड में? टर्की. ठीक है, तो इन लोगों से पहले टर्कीज थे. क्लियर है? और इंडिया किस किस के लिए फेमस था? फिर से पॉइंट पढ़िए. समवन एल्स प्लीज. आलिया. इंडिया मेंटेन टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक. Topic 1. Advent of European companies. India maintained brisk trade and commerce with West since ancient period. Since ancient period. ये जो अपना बिजनेस करते थे इंडिया में, इंडिया यूज्ड टू मेंटेन अ वेरी ब्रिस्क, व्हाट यू कैन से, वेरी प्रॉस्परस ट्रेड. हर एक से अपन हमेशा अपना कारोबार क्या था, पूरा ट्रेड पे ही डिपेंडेंट था. आजकल नहीं है, बहुत पहले से, एंशिएंट पीरियड, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, 2000-3000 साल पहले बता रहा हूँ. इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको ट्रेड दिखता. ब्रिस्क माने एकदम फुल. ठीक है, नेक्स्ट. There was demand for India's spices, pepper, cardamom, cinnamon, silk, etc. in West. After Muhammad Qasim invention in 1712 AD, there was a change. Arabs grabbed Indians' external trade in spices. They conducted their एक मिनट. इंडिया स्पाइसेस माने मसाले का और एक नाम कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, कॉन्डिमेंट. थोड़े बुकों में आपको कॉन्डिमेंट्स भी आते हैं. स्पाइसेस मींस कॉन्डिमेंट्स. ठीक है, स्पाइसेस माने मसाले. मसालों में क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर माने काली मिर्ची. कार्डमन माने इलायची. सिनेमन माने चकला है घर पे? यस सर. तो और क्या है? सिल्क एक्सेट्रा इन द वेस्ट. इंडिया से क्या सबसे ज्यादा डिमांड था? स्पाइसेस में, स्पेशली स्पाइसेस में कौन से स्पाइसेस? पेपर, कार्डमम, सिनेमन. पेपर, कार्डमन है, सिनेमन एंड सिल्क इन द वेस्ट. उसके बाद आफ्टर मोहम्मद कासिम इन्वेजन. भाई आप स्पेलिंग बराबर क्लियर है. इन्वेजन गलत मत पढ़ो. इन्वेजन माने अटैक करना. इन्वेजन माने
अटैक करना, अटैक करना, ठीक है। नेक्स्ट, कब अटैक का, व्हेन डिड द मोहम्मद कासिम केम टू इंडिया, इन्वेडेड इंडिया सबसे पहले? 1712 AD. 1712 AD, ठीक है। नेक्स्ट उसका पढ़िए। They conducted their operations through तो सबसे पहले क्या समझ आया ये, आपको जो याद रहता, स्पाइसेस में क्या याद रखना है आपको? What you have to remember in pepper, spices? cardamom, cinnamon. Pepper, cardamom, cinnamon, silk, etc. in the west. Muhammad Qasim, when did the Muhammad Qasim invaded India? 1712 AD. अब 712 AD. 712, 712 AD. There was a change. Arab grabbed India's external trade. 712 AD में कौन सेंचुरी कौन सी है? Which century? 8th century. 8th century. 8th century कब से स्टार्ट होती है? 700 to 799. 700 to 799. India grabbed India's external trade. उसके बाद पढ़िए। Please read after that. फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्या है सीरा? कौन सा रास्ते थे? WCI via the Persian Gulf, land of Iran, Mediterranean, Venice. Via the Persian Gulf, land of Iran, Mediterranean, Venice. and Venice. उसके बाद WCI via Red Sea, Alexandria, Mediterranean, Venice. Mediterranean, Venice. उसके बाद Venice. Through northwestern region of India, that is through Byzantine Empire, which is with this capital at Constantinople. Constantinople, Byzantine Empire. Constantinople. Byzantine Empire. ठीक है। एक मिनट, just wait a second. I'm opening that tab. Okay, sir. Are you able to see the screen? स्क्रीन दिख रहा? Yes, sir. क्या दिख रहा स्क्रीन पे? Map. मैप दिख मैप। इंडिया किधर है? Missouri is our Indian. And this दिस इज इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के कौन से ट्रेड रूट्स है? अभी कौन सा पढ़े थे आप? पर्शिया, Persia. ठीक है। पर्शिया किधर है? एक सेकंड रुको। हेलो, आर्य बस, ठीक है। इंडिया, इंडिया क्या है? स्क्रीन दिख रहा आपको? Yes, sir. दिख रहा sir. इंडिया में क्या क्या है? ये क्या दिख रहा आपको? मुजीरिस। मुजीरिस किधर है? तमिलनाडु साउथ में, केरला के पास. केरला। केरला के क्वेश्चन आ पास. सकता है, एंशियंट इंडिया में केरला का पोर्ट का क्या नाम था? इसका बोलते मुजीरी। मुजीरिस. पर्शिया किधर है? वेयर इज पर्शिया?
Where is Persia? Northeast. पर्शिया किधर है? इंडिया के किधर है पर्शिया? ये क्या है? West. Western, northwest. Northwest, sir. नॉर्थ वेस्ट. ये पर्शिया है. ठीक है. दिस इज योर पर्शियन Persia. गल्फ. ये क्या है अपना? पानी से जो नाइग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ. ये जो हिस्सा है पर्शियन गल्फ, इधर से ट्रेड होता था इंडिया को. ठीक है. गुजरात, राइट. समझ में आ रहा? फिर ये रेड सी, ये क्या है अपना? अरेबिया, ओमान. समझ में आ रहा ट्रेड रूट? जी सर. तो पर्शिया समझ में आया? पर्शिया का एरिया किधर है? ये Northwest side. मेडिटेरियन है. दिस इज योर मेडिटेरियन. दिस इज योर Mediterranean. Mediterranean. This is your Arabia. This is your Persian Gulf. ये जो हिस्सा दिख रहा, ये पर्शियन गल्फ का रूट है. ये ईरान, आज का ईरान. Iran. क्लियर है? ऊपर कौन था? गुप्तास. इंडिया में गुप्तास. समझ में आ रहा? जी सर. So Red Sea, Alexandria. Alexandria क्या है? आज का जो इराक है उसको बोलते हैं Alexandria. Mediterranean and Venice. थर्ड क्या है रूट? What is third route? Northwestern region of India to Byzantine Empire with its capital at Constantinople. Byzantine Empire. What is Byzantine Empire? Ruler Byzantine Empire किधर था? Northwest region. Byzantine Empire. Let us look at the Byzantine Empire. स्क्रीन दिख रहा आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन दिख रहा? Yes, sir. So are you able to see the screen here? Now where is Byzantine Empire? ये पूरा क्या था? It was completely the Byzantine Empire. ठीक. कॉन्स्टेंटिनोपल किधर है? ये क्या है? This is your टर्की. टर्की का दूसरा नाम, टर्की का पुराना नाम, टर्की का पुराना नाम क्या बोलते हैं? Asia एशिया Minor. माइनर. ये आपको आ सकता. व्हाट वाज एशिया माइनर? ठीक है. दिस अ कंप्लीट वाज द व्हाट यू कैन से इट वाज द बाइजेंटीन एम्पायर कंप्लीट. उसके बाद में इसका कैपिटल कहाँ है? Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटियम. कॉन्स्टेंटिनोपल का और एक नाम क्या बोलते थे? बाइजेंटियम. समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. टर्की का दूसरा नाम, पुराना नाम क्या है टर्की का? Asia Minor. एशिया माइनर. एशिया माइनर का कैपिटल किधर है? कॉन्स्टेंटिनोपल. ये क्या है अपना? ब्लैक सी. ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. ये अफ्रीका है पूरा. दिस कंप्लीटली अफ्रीका. क्लियर है? नेक्स्ट. समझ में आ रहा? थ्रू द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया थ्रू Byzantine Empire with its capital at Constantinople. Next point पढ़िए. When did the
this Muhammad Qasim invaded India? 1712 AD. ये important date है 712 AD. 712 AD. चल पढ़िए, ये trade routes है. Next. Is read. 1453 में क्या हुआ? 700 साल बाद. Please read. In 1453 AD, the Ottoman Turks under Muhammad II invaded Byzantine Empire and occupied its capital city Constantinople, closed the land trade routes via Constantinople. देखिए what happened there. सबसे पहले क्या है, किसके बारे में पढ़े अपन? मोहम्मद कासिम invaded India. ठीक है. After Muhammad Qasim invasion in 1712, Arabs grabbed the India's external trade in spices. ठीक है, समझ में आ गया ये? उसके बाद में 700 साल बाद, उसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर को कौन कंट्रोल में ले लिया? Who took Byzantine Empire in control? Ottoman Turks. Ottoman Turks. Ottoman माने तुर्की. Ottoman Empire बोलते. टर्की को क्या बोलते? Ottoman Ottoman Empire. Empire. कौन इन्वेट करा बाइजेंटाइन एम्पायर को? Muhammad II. Muhammad II. And occupied its city at Constantinople. Constantinople. इसके बाद पढ़िए क्या है? They also exercise authority over maritime mercantile routes also. Maritime mercantile route also. ठीक है ना. अगर आप मैप देखें, if you see the map, अगर आप मैप देखें, एक मिनट, I'm just opening the map. मैप दिख रहा है आपको? जी. Able to see the map? Yes. तो देखिए आप, ये क्या है? बाइजेंटाइन एम्पायर किधर था? ये क्या है? ये पूरा दिस वाज ऑल बाइजेंटाइन एम्पायर. देखे थे अभी? ये क्या है? टर्की. दिस वाज टर्की. जब व्हेन मोहम्मद II इन्वेडेड ऑल दिस टर्की, इधर क्या है अपना? ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज है, इटली, फ्रांस और पूरे यूरोपियन कंट्रीज है. अब उसके बाद में क्या हुआ? एक ही ये इंडिया का रूट क्या था? डायरेक्ट रूट था. इधर से यूरोपियन वाले ऐसा आते थे, इधर रुकते थे, फिर उसके बाद में फ्रॉम सेंट्रल एशिया दे ट्रैवल एंड केम टू इंडिया. यहाँ तो ऐसा आते थे, आधा जमीन तक आते थे, उसके बाद में गुजरात को आते थे, केरला को जाते थे, या तो डायरेक्टली पर्शियन गल्फ से आते थे. समझे? कितने रूट थे? रूट समझ में आया? फिर इसके बाद में चाइना को वो तरफ चले आते थे. तो समझ में नहीं आया? हेलो, ये क्या है? ये कौन सा एरिया है ये अपना? व्हाट इज दिस एरिया? Turkey. टर्की से इंडिया को डायरेक्ट रास्ता था. टर्की से इंडिया को डायरेक्ट रास्ता था. लेकिन इधर कौन अटैक करे? इधर 1452 में who invaded in 1452 this area? मोहम्मद II और क्लोज ऑल दिस एरिया. ठीक है,
तो उसके लिए वो लोगों को मजबूर होना पड़ा नए नए सी रूट्स निकालने के वास्ते। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सर नो 53 ओके सर 1452 53 में। तो उसके बाद में क्या करे वो लोग, नए नए सी रूट्स निकालना स्टार्ट करे। ठीक है, एक मिनट। Just opening this map. Everybody see the map? Yes, sir. मैप दिख रहा है आपको? जी सर। पहले लो ये क्या है, यूरोप किधर है? ये यूरोप किधर है? आउटलाइन दिख रहा पूरा आपको? पॉलिटिकल दिख रहा, वर्ल्ड पॉलिटिकल। ये क्या है, ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है? हेलो भाई जवाब दीजिए, दिख रहा तो मैप। देखो मैप दिख रहा नहीं दिख रहा, आवाज आ रही? आ रही सर आवाज। तो ये मैप दिख रहा आपको स्क्रीन पे? यस सर तो ये कौन सा एरिया है? कुछ पूछ रहा हूँ आपको, यस और नो। मालूम है तो मालूम है बोलिए, ना तो नहीं मालूम है बोलिए। ये क्या है? नहीं मालूम। दिस इज इंग्लैंड, दिस इज यूके, यूनाइटेड किंगडम जो बोलते हैं, ये हिस्सा बाहर का, ओके ये बाहर का है। उसके बाद में ये कौन सा एरिया है? दिस इज योर टर्की। इन लोग ये कौन सा, ये क्या है? इटाली, दिस इज इटाली। इसका नाम फ्रांस, पोर्चुगल, सो क्या कैसा आते थे पूरे रास्ते को? They used to come to Turkey and they used to come to India, या तो डायरेक्टली ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। ठीक है, जब ये टर्की का रास्ता बंद हो गया, when this way was closed, तो ये लोग क्या करना पड़ा, जबरदस्ती नए नए सी रूट्स मालूम करना पड़ा। समझ में आ रहा? यस सर तो जब ये रास्ता बंद हो गया, टर्की का रास्ता बंद हो गया, तो क्या करे वो लोग, ये लोग क्या निकले, इधर से निकले। फर्स्ट पोर्चुगल, कैसे निकले? सबसे पहले इधर आए, इधर आके दिस इज नोन एज केप ऑफ गुड होप, द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, नोन एज केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप सदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, नोन एज केप ऑफ गुड होप। फिर इसके बाद में ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ठीक है, अपने पास कितने कंपनीज थे इधर? बॉम्बे, मद्रास, फिर कलकत्ता बंगाल, कोलकाता। ठीक है, तो इसको मजबूर एक विंग ऐसा आया, एक विंग किधर चले गया, इधर चले गया। अब ये इंग्लैंड के लिए ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है? अगर ऐसा कहते तो ना क्या बोलते? ये इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड के लिए ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट है, वेस्ट है? ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है? ये डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट। तो ये एरिया क्या बोलते हैं अपन? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। यस
वेस्ट उन लोग ढूंढना स्टार्ट करे थे इंडिया को। जब ये टर्की वाले लोग व्हेन द टर्की द मोहम्मद टू स्टॉप दिस रूट, तो उन्होंने क्या करे, इंडिया को ढूंढने के वास्ते नए नए रास्ते स्टार्ट कर दिए। एक कौन चले गए, ये डायरेक्शन चले गए। उन लोग बोले भाई मेरे को इंडिया मिल गया बोली। व्हेन दे वेंट टू दिस साइड और उन लोगों को जब जमीन मिली तो दे सेड वी हैव गॉट द इंडिया। लेकिन कौन सा इंडिया, West. वो इंडिया जाके क्या बन गया, वेस्ट इंडीज। लेकिन एक जना क्या हुआ, ऐसा आया, फिर इंडिया को ऐसा आया। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये जब ऐसा चलेगा तो इसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज, बारबाडोस जो आइलैंड्स है। फिर इसके बाद में क्या है, ये तरफ क्या है, ईस्ट इंडीज। तो इंडिया कौन से उसमें आता था, कौन से डायरेक्शन में है इंडिया, ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्यों मजबूर हुए लोग नए नए डायरेक्शन देने के वास्ते, ज्वाइन द टर्की मोहम्मद टू इन 1453 1452। जब ये बंद कर दिया उन्हें रूट, तो उन्हें क्या, उन लोगों क्या है, अलग अलग सी रूट्स देखने निकल गए। एक जना ईस्ट में निकल गया, एक जना वेस्ट में निकल गया, एक जना ईस्ट में निकल गया। जब ये पूरा क्या था, एक जना वेस्ट एक जना ईस्ट, तो इंडिया को क्या बोलते, ये पूरा क्या है, ईस्ट इंडीज है। दिस कंप्लीटली नोन एज ईस्ट इंडीज, ईस्ट की तरफ। ये कंप्लीटली नोन एज वेस्ट इंडीज। समझ में आ रहा। तो अगर आप क्वेश्चन पूछे क्यों ये यूरोपियन पावर्स नए नए रास्ते देखने पर मजबूर हो गए थे, तो क्या क्या जवाब आता आपको, Turkey closed its land. Turkey closed its land for the तो traveling of other countries. 1453 में when Ottoman Turks under Muhammad II invaded the Byzantine Empire and occupied capital city Constantinople, closed land routes via Constantinople। तो उसके लिए क्या करना स्टार्ट कर दिए, अलग अलग रास्ते खोजना स्टार्ट कर दिए लोग, ठीक है। ये पढ़िए फिर, इस रीड। They also exercise authority over maritime mercantile routes also. मैरीटाइम मर्केंटाइल, मैरीटाइम माने व्हाट इज मैरीटाइम, पानी। मैरीटाइम मींस वाटर रूट। अगर आप पानी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैरीटाइम। मैरीटाइम मर्केंटाइल रूट्स आल्सो। नेक्स्ट, पहले तो जमीन ही बंद कर दिया और मैरीटाइम भी उधर से रेड सी और पर्शियन गल्फ वो भी बंद कर दी। नेक्स्ट, The act of Ottoman Turks under Muhammad II advisedly affected the European trade with India. माने उन लोगों के लिए नेगेटिव हो गया, रास्ते बंद कर दिए तो किधर जाते, ठीक है। नेक्स्ट, Now, moreover, the sailors of Venice, Milan in Italy monopolized the sea trade with Asia and did not let the Western Europeans like Portugal and Spain to have any share in this trade. माने उधर से जो सेलर्स ऑफ वेनिस, ठीक है, जो उधर के जो इटाली है, वेनिस माने इटाली में है, वेनिस मेलन इन इटाली, मोनोपोलाइज माने उन लोगों का कब्जा कर लिया पूरा। और इधर अगर आप मैप देखिए, आप इफ यू सी द मैप, अगर आप मैप देखे तो इधर कौन है, ये कोई एक इसका एरिया है। ये जो जूती दिख रही है आपको, यूरोप की जूती, यूरोप की सैंडल बोलते हैं इसको, ये क्या है, Spain, Portugal. देखिए ये एक हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है, यूरोप का Yes, sir. वेस्ट है, दिस यूरोपियन Okay. वेस्ट। ये पोर्चुगल, फ्रांस, ठीक है, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरा यूरोपियन हिस्सा है पूरा, Yes, sir. ठीक है। ये क्या है, ये इटाली है, Venice. Okay. इटाली एंड वेनिस। तो इन लोग क्या करे, पूरा बाइजेंटीन एम्पायर किधर से किधर तक था, ये पूरा बाइजेंटीन एम्पायर था। ये हिस्सा अलग, ये ईस्टर्न हो गया, स्टार्टिंग ऑफ ईस्टर्न। तो इन लोग क्या करे थे, पूरा ये हिस्सा बंद कर दिए थे। तो इन लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ा,
इन लोग मजबूरन क्या करना पड़ा, पूरा घूम के आना पड़ा। ठीक है, इन लोग क्या कर दिए, ऐसा घूम के आना स्टार्ट कर दिए इंडिया में, Long. जी सर। लॉन्ग मारना स्टार्ट कर दिए। समझ में आ रही बात? जी। ये हिस्सा जब बंद कर दिए लोग, तो इन लोग क्या रहे, घूम के आ गए। तो इसकी वजह से अगर ये लोग ऑटोमन वाले बंद नहीं करते थे तो कभी यूरोपियन पावर्स इंडिया को आते ही नहीं थे इतना घूम के। ठीक है, क्लियर है? जी सर। इसका जिम्मेदार कौन है? पोर्चुगल। पोर्चुगल। मैंने कौन बंद कौन करे रास्ता? Turkey. बजंताइन। बाइजेंटीन एम्पायर पे जब Turkey. मोहम्मद टू कब्जा हुआ तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो रास्ता बंद। रास्ता बंद करने की वजह से बोला पूरा घूम के आए। प्लीज रीड नेक्स्ट। All these developments led the Western European states, Portugal and Spain, to search for a new and safer sea routes to India, and most sought after spice lands of Indonesia, then known as East Indies. वो टाइम पे इंग्लैंड के क्या है, इंडोनेशिया क्या है, व्हाट इज इंडोनेशिया? East Indies था। ईस्ट East इंडीज बोलते Indies. थे वो साइड को, वेस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज के बीच में वाया इंडिया आता था। ठीक है, नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। बढ़िया। The emergence of nation states, व्हाट इज नेशन resonance स्टेट? and व्हाट इज नेशन स्टेट? जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है सर, दो स्टेट में जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहती पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक बाउंड्री के अंदर रहती और बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने बाउंड्री के के लिए अंदर आर्मी रहती है, इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट। के बाद में Resonance and reformation. Renaissance and reformation. माने नए नए चीजें क्या बोलते, पहले क्या करता, पूरा रिलीजियस जो चर्च रहता था ना, पूरा पॉलिटी पे कंट्रोल करते थे चर्च। तो वो चर्च का इन्फ्लुएंस खत्म जैसा जैसा हुआ उसको बोलते हैं रेनेसांस। ठीक है, माने सोशल रिफॉर्म्स। रेनेसांस माने Social reform. रेनेसांस इज फेज ऑफ सोशल Reform. रिफॉर्म्स। माने रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होते गया, सोशल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, के बाद Agriculture and industrial revolution. एग्रीकल्चर से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? पहले क्या था, लोग क्या थे, नोमैड्स थे। ये जगह पे खत्म हो गया, दूसरी जगह खत्म हो गया, तीसरी जगह खत्म हो गया, चौथी जगह, एक जगह नहीं टिकते थे लोग। लेकिन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से क्या हो गया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से लोग एक जगह सेटल हो गए। अगर आपको कोई पूछे एग्रीकल्चर से एक फायदा दिखाओ, माने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर की वजह से। सेटल्ड लाइफ, आप एक जमीन पे रहते और एक जमीन पे अपना पूरे पीढ़ी के पुड़िया गुजार देते। ठीक है, सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर से फायदा क्या हुआ, लोग भटकना बंद कर दिए और क्या स्टार्ट करे, एक जगह रहना स्टार्ट करे, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, फैक्ट्रीज, मशीन मेड गुड्स, फैक्ट्रीज, मशीन मेड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, New economic doctrine of mercantilism. मर्केंटलिज्म क्या है, ट्रेड। मर्केंटलिज्म माने ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या है, मर्केंटलिज्म माने ट्रेड। माने एक को फायदा तो दूसरे का नुकसान, एक का प्लस तो दूसरा लॉस। अगर मेरा फायदा हो रहा तो आपका नुकसान हो रहा है, आपका फायदा हो रहा तो मेरा नुकसान होना। माने एक कोई शेयरिंग नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही राज करना। इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच की लड़ाई देखिए आप, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच की लड़ाई हुए, कर्नाटिक वॉर्स। अगर आपको एक चीज पूछे कर्नाटिक वॉर का रीजन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ न्यू मर्केंटलिज्म। पूरा ट्रेड पे किसका कब्जा रहना, सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर का, उसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन ऑफ मर्केंटलिज्म। नेक्स्ट, मर्केंटलिज्म से आज आया कैपिटलिज्म। ठीक है, मर्केंटलिज्म का रिफाइंड फॉर्म इज कैपिटलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, competition between nation states for breaking the
mercantile monopoly of the merchants of Venice and Geneva over seaborne trade. सो पूरे पूरे ट्रिप पे कब्जा कौन कर लिए थे? वेनिस एंड जेनेवा, इटाली के, ठीक है, इटाली के, ठीक है। तो उन लोगों का खत्म करने के लिए क्या है, उन लोगों की मोनोपोली, एक बिजनेस खत्म करने के वास्ते इन लोगों का नए नए रूट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, And a great advice and a great advance in navigation technologies like compass, gunpowder, shipbuilding technology. कंपास देखिए, North, south, east, west. नॉर्थ साउथ दिखा था, जी सर। ठीक है। तो अगर आपको कंपास जैसा इन्वेंट करे तो इन्वेंट करने के वजह क्या, सी रूट एकदम इजी हो गया। इजी हो गया, ठीक है। आज जो अपन जीपीएस इस्तेमाल करते हैं कहीं जा रहे तो वो क्या है, जी, अपना सर। मॉडर्न कंपास है। फिर उसके बाद में किसी पे कब्जा करे, बाद में क्या इस्तेमाल करे उन लोगों को मारने के वास्ते, गन पाउडर, ठीक है। तो पहले क्या था, बो एंड आरो, उसके बाद क्या हो गया, गन पाउडर, और उसके बाद में गन, टैंक्स, बॉम्ब्स, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। शिप बिल्डिंग माने शिप्स पहले क्या थे, बहुत लकड़ी के बनते थे। अब जब ऐसा जी स्टील सर। और ये सब आ गया तो उन लोग स्टार्ट करे क्या, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन शिप बिल्डिंग ऐसा टाइटैनिक याद है? जी सर। हमने अब टाइटैनिक देखे मूवी, ये देखे सर। तो टाइटैनिक कैसी थी, शिप पूरी बड़ी थी। पूरी लग्जूरियस शिप, हाँ? ठीक है, पूरा घर था। है क्या रे? हेलो, हु इज दिस? बेले ठीक है, Steel- गेव yes, स्ट्रॉन्ग इम्पेटस माने पुश फॉर ज्योग्राफिकल डिस्कवरी Discover- लीडिंग टू फाइंडिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू सी रूट्स। समझ में आ गया? जी सर। तो कौन से इवेंट्स है, ये इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड, समवन एल्स प्लीज। रशिया है उधर? Assalamu alaikum, sir. Please read this important Yes, sir. geography. Important geographical discoveries. Slow. Important geographical discoveries. Year event 1471. A team of Portuguese adventurers reached up to River Congo in Africa continent, trapped in thick jungles and returned back. माने लोग रास्ता स्टार्ट कर दिए, ठीक है। 1471 में सबसे पहले कौन स्टार्ट करे, Portuguese adventurers. पोर्चुगीज ढूंढना स्टार्ट करे, पोर्चुगीज निकले इंडिया को ढूंढने के वास्ते, ठीक है। नेक्स्ट, 1487. Bartholomew Diaz traveled along the west coast of Africa, reached southern tip, faced severe storms and returned back. He named the tip as the Cape of Storms. Later it was renamed as Cape of Good Hope as it provided access to Indian Ocean. टैक्सी माने रास्ता, ठीक है। अपने को वर्ड क्या था, टैक्सी बोल के वर्ड आता, टैक्सी बोलते हैं अपन। Yes, sir. तो टैक्सी वर्ड कहां से आया, एक्सिस है, माने पाथ, वे। अगर कोई व्हीकल जा रही तो उसको बना दिए टैक्सी, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले कब स्टार्ट करे लोग? 1471. 1471 में कहां तक आए लोग? कॉन्गो के अफ्रीका तक आए, लेकिन जंगलों में देख के वापस चले गए। उसके बाद में 1487 में कौन है, ये नाम याद, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार्थोलोमेस डियाज। पढ़िए। Bartholomew Diaz traveled along the west coast of Africa, reached southern tip, faced several severe storms and returned back. He named the tip as the Cape of Storms. Later it was renamed as Cape of Good Hope. Later it was named as Cape of Good Hope. So कौन आया इधर, स्क्रीन दिख रहा? हाँ सर, मैप दिख रहा, वर्ल्ड मैप दिख रहा। वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप
किधर तक आया उन्हें? ये पोर्चुगल से निकल के he came to this point. ये पॉइंट दिख रहा है इधर? हाँ सर, दिस इज केप केप ऑफ ऑफ, गुड होप। पहले क्या नाम था इसका? केप ऑफ स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स। लेकिन जब इन्हें वापस गया राजा के पास, राजा क्या बोला, भाई आपको जमीन तो मिली ना, वो स्टॉर्म नहीं होता, केप ऑफ गुड होप है। माने अपने को एक होप मिला फिर से ट्रेड स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से स्टार्ट करा उन्हें, इधर तक आया, फिर उसके बाद ये मेडागास्कर, फिर उसके बाद इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया? कैलिकट, क्लियर है? यस सर। सो हु वाज द पर्सन? बार्थोलोमेव डियास। बार्थोलोमेव Yeah. डियास, ठीक है। नेक्स्ट, later renamed as Cape of Good Good Hope। Hope as it provided access to Indian Ocean. Next, 1492, Christopher Columbus traveled across Atlantic Ocean and reached Bahamas region near America. तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्हें क्या समझा? इंडिया मिल गया मेरे को बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, He was under the impression that he reached the west side of India and named them as West Indies and the tribe as Red Indians. रेड इंडियंस। तो इन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसा चले गया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इसे मालूम हुआ कि भाई एक रास्ता है बोल के, व्हाट डिड ही डू? व्हाट डिड ही डू? जब बार्थोलोमस डियास बताया भाई मैं इधर आके गया बोल के, तो उसके पीछे पीछे कौन निकल गए? Christopher Columbus. क्रिस्टोफर ने, बार्थोलोमस डियास केम लाइक हियर, इधर आया हमने, लेकिन इन्हें क्या करा? ऐसा निकल गया, ठीक है। ये कोलंबस केम लाइक दिस, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वेस्ट की तरफ है ये, Yes sir. इनके वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है। लेकिन रास्ता कैसा है? ऐसा है, ठीक है। फिर इधर आए बाद में वापस मालूम हुआ कि भाई ये इंडिया नहीं होता, ये कोई दूसरी कंट्री है, ये क्या है? अमेरिका से, ठीक है। ये दो, these two were known as Americas, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, और उन लोगों का नाम क्या पड़ गया? उन लोगों का रेड इंडियंस। उसके बाद 1498, 1498, Vasco da Gama following route of Diaz, that is along the west coast of Africa, reached its southern tip. From there reached Madagascar, and with the help of Indian merchant Abdul Wahid entered into Arabian Sea and reached Calicut on 17th May 1498. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लीजिए, प्लीज नोट ऑन द डेट, नोट ऑन द डेट। व्हेन डिड द वास्को डी गामा केम टू इंडिया? 1498, 17th May. पूरी डेट 17th May 1498. 17 में 1498, ठीक है। वास्को डी गामा, हु डिस्कवर्ड यूएसए? Vasco da Gama. हु डिस्कवर्ड यूएसए? क्वेश्चन पहले Columbus. समझो, सुनो, हु डिस्कवर्ड यूएसए? Christopher Columbus. क्रिस्टोफर कोलंबस। देन हु डिस्कवर्ड इंडिया? Vasco da Gama. वास्को डी गामा। हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप? Bartholomew Diaz. बार्थोलोमेव डियास, Yes. समझ में आया? नेक्स्ट, 1501, another voyager, Amerigo Vespucci, traveling across Atlantic Sea, reached South America. Since he declared it is a separate land, the continent is named after him, that is America. अमेरिको वेस्पुची, माने उन्हें वेस्ट, इन्हें कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस किधर में क्या हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज, West Indies. ठीक है। इसके बाद में वास्को डी गामा India. इंडिया, अमेरिको वेस्पुची America. कौन सा अमेरिका? South America. साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, 1519, Ferdinand Magellan sailed circumnavigating America, entered into Pacific Ocean, reached Philippines.
There, his team was attacked by local population and Magellan was killed. The team returned back via Madagascar and Cape of Good Hope. Thus, Magellan and his voyagers first time exposed the entire globe. एंटायर ग्लोब। इन लोग कैसे स्टार्ट करे थे? फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है। इन्हें हाउ डिड ही गो, हाउ डिड ही गो, हाउ डिड ही गो, ये क्या है अपना पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये पूरा इधर जो आए हुए लोग, व्हाट डिड ही डिस्कवर, क्या डिस्कवर करा उन्हें? प्लीज रीड दिस पॉइंट वंस अगेन। Ferdinand Magellan sailed circumnavigating America, entered into Pacific Ocean, reached Philippines. There, his team was attacked by local population and Magellan was killed. The team returned back via Madagascar and Cape of Good Hope. Thus, Magellan and his voyagers first time exposed the entire globe. फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर द एंटायर ग्लोब। तो ये लोग कैसा गए? पहले ये मैप दिख रहा आपको, मैप दिख रहा, आर यू एबल टू सी द मैप? Yes, sir. उसके बाद इन लोग क्या करे? ये लोग ये जो है इन लोग निकले पूरा फिलीपींस किधर है, वेर इज फिलीपींस, ऐसा गए, फिर पलट के ऐसा है, इधर फिलीपींस है, फिर उसके बाद में ऐसा है लोग वापस, समझना? Wow. कैसा गए लोग? हाउ डिड दे गो? ये दिख रहा मैप? जी सर। लोग कैसा गए? ये पूरा ये लोग Land. हाउ डिड दे गो? पूरा इधर गए, इधर से वापस गए, इधर कहाँ निकले? इधर निकले, पूरा पैसिफिक ओशन फिर लेके गए पीछे से, फिर उसके बाद में इधर मैगेलन किल हो गया, उसके बाद में दे केम बैक, दे केम टू इंडिया, दे केम टू, ये क्या है? मेडागास्कर है, दे केम टू मेडागास्कर। फिर उसके बाद में दिस इज योर केप ऑफ गुड होप, फिर पलट के इधर आ गया। समझ में आ गया? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. चलो राइट, समझ में आ रहा है ये? So who discovered what? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन ट्राई करे? सम पोर्चुगीज। फिर उसके बाद में who came after Columbus? Dias। उसके बाद में कोलंबस। उसके बाद में Vasco da Gama, उसके बाद में America, voyager, Vespucci, उसके बाद में Ferdinand Magellan. फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, 1519 में क्लियर है ये? तो उसके बाद में कनाडा कौन डिस्कवर करे? जैक स्कॉटियर। उसके बाद Result: with these cumulative efforts of the team of adventurers, the entire globe was unfurled. उसके बाद Discovery of America and the Cape route to India were the two greatest and most important events recorded in the history of mankind. Adam Smith. In the 16th century, Eastern trade was a monopoly of Spain and Portugal. Later, it was dominated by Dutch, French, and British merchants. सबसे पहले कौन डोमिनेट करे? डच। फिर इसके बाद में फ्रेंच, इसके बाद में ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट पोर्चुगीज माने डच को ही बोल रहे आप, क्लियर है? सो लेट अस स्टॉप हियर, विल स्टार्ट दिस कंपेयर। समझ में आया अभी तक? जी सर। कैसा हुआ? टुमारोज क्लास विल रीड द पोर्चुगीज का स्टोरी क्या है, फिर फ्रेंच की स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद में डच, पोर्चुगीज का ऐसे निकलते हैं डच, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या स्टोरी है? फ्रेंच की, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेनमार्क, देन वी हैव फ्रेंच,
और उसके बाद में एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ये अपन कंप्लीट कर लिए, याद है नहीं है, भूल गए? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर we have already completed this. So tomorrow we'll study about the East India Company. ठीक है? Take a break sir. of बोलिए. Hello. Hello. Okay, take a break of Yes, 10 sir. minutes. We'll start the soil Yes, sir. geography. Okay, sir.